Hello everyone, welcome to lecture number 6. So today in lecture number 6 we will be dealing with question number 36 to question number 42. Now let us begin with question number 36. This is the first question of the day. And the question is a two-digit number is reversed. Such type of questions do come in the exam. Okay, please make a note of it, the concept behind it. It might take some time to explain it, but once you understand this question, it won't take that much time in your exam hall. So don't think that, okay, it is taking 5 minutes of time for explanation, so I won't be able to do it. No, since I'm making a video for you people, I want that I will explain in such a fashion that you understand the concept. So it might take some time, but don't worry about it. Okay, in exam hall, if you know the concept, you can apply it directly. Now let us understand the concept first. It has asked you a two-digit number is reversed. The larger of the two numbers is divided by the smaller one. So the concept is all about numbers and remainder, which is the largest possible remainder. And the number is being divided. Now we don't have a clue about what is the two-digit number. Okay, we don't have a clue that which is the two-digit number here. And it is being reversed also. So in such a case, I have already told to you that in such a case, what you need to do is you need to assume a number. You have to do an assumption. Now, once someone assumes a number, let the number be AB. But you cannot write it as AB. Okay, you have to represent it in its form. Now, what is the form of this number? The form of this number is 10A plus B. Clear? You have to note it. We have already done such a question where you assume a number AB or ABC, you represent it in a form of 10A plus B. When you have no clue what number is to be taken, just assume AB, take it as 10A plus B. The format remains the same. Okay. Now the number is being reversed. Now since the number is being reversed, now the reversed number becomes BA. Now what is the number itself? The number is 10B plus A. Now the larger of the two numbers is divided by the smaller one. Now what is the larger number here? No clue. Let this be the larger number. Now the larger number is 10A plus B. Now how can a number be larger? Tell me, how can a number be larger? You have to take the largest of the number. You have been given the larger of the two numbers. So I want to take the largest number. Now what is the possible case? If you take a number as 12, then 11. Suppose it is 12. The larger number becomes 21. If you take 13, the larger number becomes 31. If you take 23, the larger number becomes 32. Now in such a fashion, if you take suppose 18, the larger number becomes 81. If you take 19, the larger number becomes 91. Now since the question is what is the largest possible remainder, now to find the largest remainder you have to take the largest number also, because अगर आपका डिविडेंड जितना बड़ा होगा चांसेस है आपको रिमाइंडर भी बड़ा मिले. Are you getting this? If you divide 21 with respect to 12, the remainder that you get will be eventually smaller. Clear? अगर ये वाला नंबर आपका जितना बड़ा होगा उससे चांसेस है कि आपको रिमाइंडर भी बड़ा मिले. So to get the largest number, always remember in such a case, this has to be a bigger number. Now when this will be bigger? This will be bigger when A will be bigger. When A will be bigger, A will be 9. If A becomes 9, the number becomes 90 plus B. And the reverse number becomes 10B plus 9. Clear? Now anyways, the number is nothing but the series of this number 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99. यही सीरीज होगा ना, क्योंकि आपको यहाँ पे तो 90 मिल गया. रिवर्स की बात छोड़ दो, रिवर्स तो इसका 9 होगा, इसका 19 होगा. इट इज प्रीटी एविडेंट फ्रॉम दैट.
तो यहाँ पे तो 90 प्लस समथिंग तो आना ही आना है. 90 प्लस समथिंग विल डेफिनेटली कम. If 90 plus something comes, these are the possible numbers that I will get. Now, the largest of the two number is divided by the smallest one. Now, clearly see, if my numbers are this, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. I need to eliminate now. Understand this fact. I have to get the largest remainder. It will be divided by 9. It will be divided by 19. It will be divided by 29. It will be divided by 39. It will be divided by 49. It will be divided by 59. This will be by 69. This will be by 79. This will be by 99 itself. This will be by, sorry, this will be by 89 and this will be by 99. ना obvious सी बात है, यहाँ पे तो clearly divisible हो जाएगा, तो ये तो कभी आंसर ही नहीं होगा. when 98 और 89 और यहाँ पे देखो ये तो clearly divisible है, ये भी कभी आंसर नहीं होगा. तो हमारा आंसर इसी रेंज में आएगा. क्लियर. नाउ व्हाट इज द रिमाइंडर नाउ? लेट अस सी द ऑप्शंस. हमें चाहिए लार्जेस्ट रिमाइंडर. नाउ वन थिंग यू शुड नो इज रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर. बिकॉज आप लिखते हो ना डिविडेंड is equals, this is the explanation part, okay? Dividend equals to quotient into the divisor plus the remainder. Now remainder has to be less than the divisor, nahi to dividend to possible hai. Because you can see this, if this is 5, when you divide it by 2, you write it as 2, you write it as 4, you write it as 1. अगर ये वाला आपका इससे बड़ा है तो डिवीजन तो पॉसिबल है. Now this is the fundamental rule of division. What is that? Any number a when divided by b, my bad, I've written it in a wrong notation. Now see, when any number a is divided by b, it can be represented as, a can be represented as b times of p plus r or b times of q plus r, where q is the quotient. The remainder r is always this range, less than b, नहीं तो डिवीजन तो पॉसिबल होगा. सो यहां पे आप देख सकते हो इसका रिमाइंडर तो 19 से नीचे आएगा. इट विल बी लेस देन 19. सो इसका तो आंसर ही नहीं आएगा. इट वोंट गिव यू द लार्जेस्ट. क्लियर. सो ये एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पे लेस देन 29 आएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पे लेस देन 39 आएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पे लेस देन 49 आएगा, यहाँ पे लेस देन 59 आएगा. इससे आगे जाओगे, एक चीज ऑब्जर्व करो, इससे आगे जाओगे आप देखो 96 को जब आप 69 से डिवाइड कर लोगे ना, ऑल्दो इट विल गिव यू रिमाइंडर लेस देन 69, बट एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 69 हो जाएगा. गॉट इट. सो इट विल गिव यू 96 माइनस 69 यानी 27. यहां से वो रिसीड करेगा, इट विल डिक्रीज. नाउ यहाँ पे रिमाइंडर आपका 27 आएगा. यहाँ पे when you do 97 minus 79, ये आपका रिमाइंडर 18 देगा और ये आपका रिमाइंडर 10 देगा. डरने की कोई बात नहीं है, समझो. ये आपका रिमाइंडर 27 देगा, ये आपका रिमाइंडर 18 देगा, ये आपका रिमाइंडर 10 देगा. बट इस दोनों को देखो, when 94 is divided by 49, ये आपका रिमाइंडर कितना देगा? 45 देगा. और when 95 is divided by 59, ये आपका रिमाइंडर कितना देगा? 36 देगा. आर यू गेटिंग इट? वाई? बिकॉज 95 एक नंबर है, आप 59 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे तो 1 ही आएगा, ये 59 होगा, ये रिमाइंडर 36 आएगा. नाउ यू वुड बी आस्किंग कि सर आप यहाँ पे चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे तो चेक नहीं किए, क्यों? बिकॉज 93 को जब आप 39 से डिवाइड करोगे ना, व्हाट विल हैपन यू नो? इट विल गिव यू हियर 2. तो यहाँ पे कितना आएगा? 78 आ जाएगा. दैट मीन्स it will give you the answer as remainder 15. यहाँ पे 15 आएगा. So that means it is flowing like this. इस तरह का ग्राफ हो रहा है. पहले तो वो बढ़ेगा, उसके बाद फिर घटेगा. It will decrease. So remainder will be highest is 45. This is a very tough question.
I hope you have understood it. अगर आपका कुछ डाउट है, you can put it in your comments so that I will get that an assessment that okay ये क्वेश्चन आपका डाउट है तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम रिविजन करेंगे, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि okay you need to arrange it, you need to check कि where you are getting the highest remainder in exam hall. I would suggest if you know this fact then you attempt it or else you can safely leave it. Okay, सारे questions करना नहीं है, you need to score beyond सपोज से 80. अगर हम 80 का टारगेट लेके जा रहे हैं, डोंट टेक द टारगेट एज 66, यू विल एंड अप स्कोरिंग 40. टेक द टारगेट एज 100, यू विल स्कोर सम अराउंड 80. ओके, तो अगर हम एक 100 का टारगेट ले रहे हैं, सारे क्वेश्चन तो करना नहीं है, so you can safely leave this question, but since you have understood this question now you can attempt it in your exam. ठीक है? Now coming to the next question, there are certain two digit numbers. These are difficult questions, gradually the level is increasing. There are certain two digit numbers. The difference between the number and the one obtained on reversing it is always 27. How many such two digit numbers are there? Similar approach. Already the same type of questions are coming. Okay, if I take the number AB, the number becomes 10A plus B. If I reverse it, it becomes 10B plus A. Now the difference between the number and the one obtained on reversing it. So 10A plus B, when difference 10B plus A will give you always 27. So अगर हम इसको subtract करेंगे, this will be 9A minus 9B equals to 27. 9 here, A minus B equals to 27. 9 cancelled, it will be 3. A minus B equals to 3. मतलब ये जो दो प्लेसेस है, इस दोनों का प्लेसेस का सब्ट्रैक्शन वैल्यू विल बी 3. हमारे पास नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नॉट 0. व्हाई? बिकॉज 0 वोंट गिव यू अ टू डिजिट नंबर. तो ऐसे कितने पेयर्स है जिसमें दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस 3 आना चाहिए? इफ आई टेक 1, 1 को 4 के साथ होगा, 2 का 5 के साथ होगा. ऐसे कैलकुलेट मत करो, 2 का 5 के साथ होगा, 3 का 7 के साथ होगा, नहीं. देखो 9 है, 9 का किसके साथ होगा? 6 के साथ होगा. दैट मीन्स फ्रॉम 1 से लेके 6 तक ये सारे पेयर्स होंगे. तो कितने टोटल है? 6 पेयर्स. सो योर आंसर वुड बी हाउ मेनी सच पेयर्स? 6 पेयर्स. बट 6 पेयर्स इज नॉट देयर इन द आंसर, सो आंसर इज नॉन ऑफ द अबव. कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे इस बात को कि हाउ कैन आई डायरेक्टली से 6. अगर आप लिखोगे भी तो क्या आएगा? 1 को 4 के साथ, क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए. 2 का 5 के साथ. नाउ 3 विल बी टेकन विथ पेयर्ड विथ 6, 4 विथ 7, 5 विथ 8, 6 विथ 9. टोटल कितने? 6 हो गए ना. सो आई चोज द लास्ट वन. देन आई ट्रेस्ड बैक कि ओके इसका आएगा 6, इसका पेयर आएगा 6. सो 1 से लेके 6 तक कितने नंबर्स होंगे? 6 नंबर्स होंगे. गॉट इट? ओके, दिस वाज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this question is missing data type but related to number system. ये क्वेश्चन पक्का करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है? कैसे? इट हैज आस्क्ड यू कि ओके दिस इज द रिक्वायर्ड सम, आई नीड टू फाइंड द अबव सम. आपके सामने ऑप्शन है, बस ऑप्शन को यहाँ पे डाल दो और चेक करो सम हो रहा है या नहीं. कैसे? x, सपोज ये डॉट को मैंने x मान लिया, तो यहाँ पे 1x आएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x3, यहाँ पे x1, फाइनली 21x. अभी देखो 3 टाइम्स ऑफ x, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू x. इसको 2x इक्वल्स टू -4 मत करो, ठीक है? ये बस हमें प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 3x प्लस 4 इक्वल्स टू x आना चाहिए. अगर मैं 4 को यहाँ पे डाल दूं तो कितना आएगा? 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 4 इज 16. तो अगर यहाँ पे 4 होगा, 4 इंटू 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16. तो यहाँ पे आप 6 लिखोगे, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें आंसर चाहिए 4. अगर मैं 5 लूंगा तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 इज 19. तो यहाँ पे आंसर आएगा 9. तो ये भी नहीं होगा. अगर 6 लूंगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 18 प्लस 4 22. तो यहाँ पे 2 आएगा, ये भी नहीं होगा. तो फाइनल बच रहा है 8. कैसे? 8 प्लस 8 प्लस 8 विल बी 24. 20 प्लस 4 प्लस 4 इज 28. तो आपका आंसर 8 आ रहा है. जो पहले x था वही 8 आ रहा है. 8 था, 8 आ रहा है. आर यू गेटिंग दिस? सो योर आंसर वुड बी 8. वेरी क्लियर, इजी.
because these are basic addition level question. Okay, this is an important question. This is an important question. Now see, the question reads, x is between -3 and -1. Y is between -1 and 1. Then find x square minus y square. I want to tell you one concept before going to this. कभी भी आपको एक नंबर मिलेगा x, it can lie between 2 and 3. एक नंबर मिलेगा x, it can lie between -2 and 3. एक नंबर मिलेगा x, it can lie between -3 and -2. एक नंबर मिलेगा x, it can lie between -2, sorry, just a minute. दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, हो गया सारा केसेस. एक केस ऐसे ले सकते हैं और एक केस होगा ऐसे. You can see I have taken all possible cases where a number can lie. A number can lie between two positive numbers. Number lying between two positive numbers, very very important concept, इसको ध्यान से सुनो. A number lying between two positive numbers, a number lying between a negative number and a positive number, a number lying between two negative numbers, a number lying between 0 and a positive number, a number lying between a negative number and 0. अभी आपके दिमाग में आएगा सर एक केस छूट गया. A number lying between a positive number and a negative number. ये नहीं हो सकता है. क्यों? How can a number lie between positive number and negative number? ऐसा केस थोड़ी ना बनेगा. ये तो नहीं बनेगा. ये तो गलत है. Got it? So these are the possible cases. अभी अगर हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे, we have to find the range of x square. देखो जब भी आपका दोनों पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर भी उसका पॉजिटिव रेंज में ही आएगा. यानी 4, इसका स्क्वायरिंग कर दोगे 4, इसका स्क्वायरिंग कर दोगे 9. सो इट विल लाई बिटवीन 4 एंड 9. जब भी आपका एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसके बीच में 0 है, तो हमेशा वो 0 उसका लीस्ट वैल्यू होगा. गॉट इट? -2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4. 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9. इस दोनों में मैक्सिमम कौन सा है? 9. सो 0 x स्क्वायर विल बी लेस देन 9. 0 विल बी लेस देन x स्क्वायर, लेस देन 9. ये बात समझ में आ गया? क्यों? देखो, अगर आपका नंबर रेंज ऐसा है, यहाँ पे x है, सॉरी x विल लाई बिटवीन दिस. यहाँ पे एक नंबर 0 है, यहाँ पे एक नंबर -2 है, यहाँ पे एक नंबर 3 है. आप यहाँ पे हो और एक -1 है और एक 1 है और एक 2 है. यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आपका स्क्वायर वैल्यू कितना आएगा? 4. यहाँ पे आपका स्क्वायर वैल्यू कितना आएगा? 1. यहाँ पे आपका स्क्वायर वैल्यू 0. यहाँ पे आपका स्क्वायर वैल्यू 1. यहाँ पे आपका स्क्वायर वैल्यू 4. यहाँ पे आपका स्क्वायर वैल्यू 9. अब देखो इस सब में से लोएस्ट कहाँ पे आ रहा है? 0 पे आ रहा है. और हाईएस्ट कहाँ पे आ रहा है? 9 पे आ रहा है. 9 इसलिए क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है. क्लियर? सो प्लीज कीप इन माइंड, अगर एक नेगेटिव केस आ गया नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, तो लीस्ट वैल्यू हमेशा 0 आएगा और हाईएस्ट वैल्यू हमेशा उस दोनों में से जो मैक्सिमम स्क्वायर देगा. गॉट इट? अभी यहाँ देखो, -3 है, -2 है, क्या इस दोनों के बीच में 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है. सिंस 0 नहीं आ रहा है, इसका लीस्ट वैल्यू कहाँ पे आएगा? इसका आएगा 4 और इसका आएगा 9. तो इसका लीस्ट वैल्यू होगा 4 और 9 के बीच में. यहाँ पे लीस्ट वैल्यू 0 और 9 के बीच में. और यहाँ पे लीस्ट वैल्यू 9 और ये 0, तो 0 और 9 के बीच में. क्यों? क्योंकि स्क्वायर वैल्यू हमेशा कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है. गॉट इट? सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस केस ओनली. अभी चलते हैं क्वेश्चन पे. अगर आप ये चीज समझ गए हो, इस क्वेश्चन पे देखो, x इज बिटवीन -3 एंड -1. अगर x -3 और -1 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? मैं बताया था, -1 को स्क्वायर करो 1 आएगा, -3 का स्क्वायर करो 9 आएगा. इसके बीच में 0 है क्या? नहीं है. तो आप लिखो 1 और 9. गॉट इट? अभी देखो y का स्क्वायर. y लाइज बिटवीन -1 और 1. इस दोनों के बीच में 0 है. तो लीस्ट वैल्यू 0 होगा. हाईएस्ट क्या होगा? इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, तो 1 आएगा. एक्स स्क्वायर का रेंज मिल गया, वाई स्क्वायर का रेंज मिल गया. पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रेंज. क्या हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आंसर हो जाएगा? नहीं. कभी भी इनइक्वालिटीज को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं. गॉट इट? अब देखो, एक्स स्क्वायर लेस देन 9, अगर मैं इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दूं,
तो क्या आएगा, -1 माइनस वाई स्क्वायर 0, साइन अल्टर हो जाता है। अभी इसको ऐड कर दो, ये 0 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आएगा 9। गॉट इट? क्लियर? सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 एंड 9। वन थिंग आई वांट टू से टू यू, ये चीज, it takes a long time to teach all this because it requires a fundamental course for it. Okay, so if you are watching this video, I want you to go to your notes wherever you have taken the course. It's not like you should take a course at corridor, but अगर आप कॉरिडोर पे क्लासेस पे हो तो ये चीज क्लासेस में पढ़ाया गया है। अगर आप कहीं बाहर से किए हो एंड यू आर स्टिल वाचिंग द लेक्चर, आई वांट यू टू गो टू योर नंबर सिस्टम नोट्स, रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स एंड अगेन कम एंड वॉच दिस लेक्चर। ओके, देन इट विल हेल्प यू। तो आपको यहाँ पे तो मैंने बता दिया जितना हम मेरे से हो पाएगा। गॉट इट? बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप दिस थिंग ओनली टू PYQ, बट स्टिल आई हैव गिवन यू सम बैकग्राउंड ऑफ इट सो दैट आई कैन टीच यू द कॉन्सेप्ट। ओके, और टू आई कैन टेल यू द अप्रोच टू द क्वेश्चन। सो आई हैव गिवन सर्टेन अमाउंट ऑफ बैकग्राउंड, बट उसके और ज्यादा जानने के लिए काइंडली रेफर टू योर नोट्स। ओके, now I hope you have understood this question. So this is a very important question. Now let us come to this question. X and y are natural numbers other than 1 and y is greater than x. तो x और y क्या है? Natural numbers other than 1. x and y is greater than x. y is greater than x. y x से बड़ा है. Which one of the following represents the largest number? इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आपको ये बताया है नेचुरल नंबर नहीं 1 नहीं होगा और y बड़ा है। एज्यूम करो x को मान लो 2, तो y कितना हो जाएगा? 3। एज्यूम कर लिया। एक्स वाई का वैल्यू कितना है? छोड़ देते हैं लोग इस क्वेश्चन को। एक्स वाई का वैल्यू विल बी 6, एक्स बाय वाई का वैल्यू विल बी 2/3, वाई बाय एक्स का वैल्यू विल बी 3/2, एक्स प्लस वाई विल बी 5/6। इसमें से पूछ रहा है लार्जेस्ट कौन सा होगा? ये 6 है, ये तो लेस देन 1 आएगा, तो ये कभी आंसर नहीं होगा। ये भी लेस देन 1 आ रहा है, ये भी कभी आंसर नहीं होगा। ये ग्रेटर देन 1 है लेकिन 1.5 है, ये भी कभी आंसर नहीं होगा। ये लार्जेस्ट है 6। गॉट इट? वेरी इजी क्वेश्चन। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि ओके दिस इज द रेंज गिवन टू मी, ये रीजन गिवन है और ये कंडीशन गिवन है, उसके हिसाब से मैंने नंबर मान लिया। तो बोल रहा है ना कि एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स, आई नीड नॉट टेल मी कि ओके दिस हैज टू बी अ पर्टिकुलर नंबर, आई हैव टेकन द नंबर्स एज पर द कंस्ट्रेंट। देखो कभी भी आप चीज को फॉल्स दिखाने के लिए एक ही केस चाहिए, बट ट्रू दिखाने के लिए पूरा डोमेन कवर होना चाहिए। यहाँ पे तो पूछा है कि विच ऑफ देम इज द लार्जेस्ट नंबर, मैं तो प्रूव कर दिया कि ये तो लेस देन 1 है इस केस में, तो ये हमेशा इससे छोटा होगा। ये तो इससे भी छोटा है और ये इससे भी छोटा है, तो ये बड़ा है। एक्स वाई इज द ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर? सो आवर आंसर इज ए। Now let us come to the next question. Now what is this next question? A number consists of, we have to find the difference between the first and the last digit. Okay, a number consists of 3 digit. क्या कुछ पता चल रहा है? 3 digit मतलब क्या होगा? What will be the number? ABC, यानी 100A plus 10B plus C, which out of which the middle one is 0. So this will be 0. So what will be the number? Pardon me for an interruption. Actually, there was an important call. Now let us continue. And their sum is, middle one is 0 and their sum is 4. So the sum of these three numbers, yani a plus b plus c equals to 4. b is 0. So a plus c equals to 4. ये condition है. If the number formed by interchanging the first and last digit is greater than the number itself by 198. A number is formed by interchanging the first and the last digit. So what will be the number? This will be the number. Now the difference is, the number formed by interchanging the first and last digit is greater than the number itself by 198. So 100C plus A minus 100A plus C equals to 198. यही बता रहा है ना? If the number formed by interchanging the first and the last digit is greater than the number by 198, यहाँ से वो 198 बड़ा है. So this minus this will be 198. So can we subtract this? This will be 99C minus 99A equals to 198. So which implies C minus A equals to 2. वही पूछा है ना, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट. सो आंसर इज 2. सो ये क्यों दिया है पता नहीं.
हाँ, बस इसको हम यूज करके भी कर सकते हैं, बट हमने नहीं किया, बट इसको हम यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं. वी हैव डन इट डायरेक्टली. सो योर आंसर विल बी 2. इजी. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? If the which of them is following of them is true, always true. क्या है क्वेश्चन? ऑलवेज ट्रू पे थोड़ा ध्यान देना. पेन इज लेस देन पेंसिल. ओके, पेन पेंसिल से छोटा है. पेंसिल इज लेस देन बुक. तो यहां से क्या मिलेगा? पेन इज लेस देन पेंसिल इज लेस देन बुक. गॉट इट. एंड बुक इज ग्रेटर देन कैप. बुक कैप से बड़ा है, तो कैप कहीं यहां आएगा, बट वो पता नहीं कहाँ आएगा, बिकॉज इट हैज नॉट गिवन यू द कंडीशन ऑफ पेन और पेंसिल, क्योंकि कैप इससे छोटा है, बुक से छोटा है. कैप इज लेस देन बुक, सो कैप विल कम समवेयर हियर इन दिस रेंज. बट वो रेंज हमें पता नहीं है, बिकॉज कैप का रिलेशन इनके साथ दिया ही नहीं है. Which of them is always true? So since cap relation is not given, so cap cannot be the answer. Anyways, कैप और पेंसिल, कैप और पेंसिल, कैप और पेन का रिलेशन गिवन ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है. सो पेन विल बी ऑलवेज लेस देन बुक. एंड ओबियस सी बात है, देखो, पेन इज लेस देन बुक. Got it? Easy question. So we have completed today's session. That means today's part. Now we'll go for the revision section. But prior to that, there was a question regarding subtle service. A doubt was there. I want to clarify that. Regarding the subtle service question, now see, यहाँ पे है स्टेशन A और यहाँ पे है स्टेशन B. क्या होता है कि suppose this is a train. Now this train will go reach B. Again this train, suppose ये train ऐसा है, this train will again start from B and will come to A. Again this train, once it reaches A, now this train will start from A and will go to B. शटल सर्विस में क्या होता है कि डेली ट्रेन चलता है. द ट्रेन हैज टू रन डेली. यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे दिया नहीं है. द क्वेश्चन इज हियर. सी, वो सेकेंड डे का क्वेश्चन था शायद, ये वाला. अ डेली ट्रेन, a daily train is to be introduced between A and B, starting from each end. A daily train to be introduced from A and B, starting from each end at 6 am. 6 बजे हर दिन एक ट्रेन चलना चाहिए. तो ट्रेन क्या ऐसे हम 365 डेज 365 ट्रेन चलाएंगे? ऐसा नहीं है. सो कॉस्ट तो मिनिमाइज करना है. so that means we need to have minimum number of trains. The minimum number of trains required to maintain the shuttle service, that means daily service, कितना चाहिए, कितना ट्रेन होना चाहिए, देखते हैं. सपोज आज फर्स्ट है, 1 ओके, और है मंडे. मंडे से शुरू होगा. ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है. यहां से एक ट्रेन आएगा. सपोज दिस इज ट्रेन 1. इसको 42 आवर्स लेता है, तो यहाँ पे वो ट्यूसडे हो जाएगा. दैट मीन्स ये चलेगा 24 आवर्स, बीच में कहीं पे ट्यूसडे हो जाएगा. फिर आएगा और 18 आवर्स. अभी भी और 6 आवर्स बचा है इसका कवर करने में. यहां से T2 एक ट्रेन चलेगा ऑन द सेम डे एट 6 am, तो वो भी यहां तक आएगा. फिर इसका ट्यूसडे हो जाएगा. फिर और 18 आवर्स चलेगा. फिर बीच में और 6 आवर्स लगेगा उसको उस दिन कवर करने में. आर यू गेटिंग दिस? तो जो 1 जैन है, 1 जैन से जो ट्रेन शुरू हो रहा है T1, 2 जैन में क्या कुछ ट्रेन अभी तक आया है बी से? बी से तो ट्रेन पहुंचा ही नहीं है. बी का ट्रेन अभी भी रोड में है. इट इज ऑन द ट्रैक एज ऑफ नाउ. सो यू हैव टू स्टार्ट विथ अनदर ट्रेन नाउ, क्योंकि ट्रेन तो अवेलेबल नहीं है ना. अगर बी से कोई ट्रेन आ चुका है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, बट सिंस अभी तक आया नहीं है, तो 2 जैन को T3 से शुरू करना पड़ेगा. 2 जैन को सिमिलरली T4 से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन अभी तक और कोई ए तरफ से तो आया नहीं है. सो 4 ट्रेन हो गए. अभी 3 जैन की बात करते हैं. 3 जैन जब आएगा, तो ये जो T2 वाला ट्रेन है ना, वो तो ए पे पहुंच जाएगा ना, क्योंकि और 6 घंटा बाकी है, तो वो कवर कर लेगा. तो 3 जैन को जो ट्रेन चलेगा यहाँ से, वो T2 चलेगा.
और 3rd जन को बी से कौन सा ट्रेन चलेगा, T1 चलेगा, और ट्रेन की कोई जरूरत नहीं है, द साइकिल रिपीट्स नाउ। गॉट इट? वही क्वेश्चन था कि हमें मिनिमम कितना ट्रेन चाहिए, तो T4 4 ट्रेन चाहिए, सो दिस वाज द आंसर। शटल सर्विस, डेली सर्विस मेंटेन करने के लिए कितना ट्रेन चाहिए, क्लियर? सो दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज वन डाउट, सो आई एक्सप्लेन्ड इट अगेन। नाउ लेट अस कम टू द रिवीजन, द रिवीजन ऑफ 5th Jan, दिस विल बी आवर फर्स्ट रिवीजन। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन फिजिक्स क्वेश्चन है, सो आई टोल्ड यू टू लीव। ये आपका रिवीजन नंबर 1 है ऑफ 5th Jan। सो ये वाला क्वेश्चन छोड़ने के लिए बोला था। अभी ये वाला क्वेश्चन क्या है, अच्छा एप्पल वाला क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालना है। गॉट इट? आपको एक 5 था, बाकी सब था, इसको कैलकुलेट करके डिस्टेंस निकालना था। जस्ट अ क्विक रिकैप, आई नीड नॉट सॉल्व इट अगेन। ये क्या है, इनकम कंपैरिजन, ए बी, और यहाँ पे ए इक्वल टू सी आया था, कौन ज्यादा पैसा है, किसके पास ज्यादा पैसा है, तो बी विल बी ग्रेटर देन डी, ऐसा कुछ आया था। अभी यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, स्लिप वाला क्वेश्चन। मैं बताया था जितना भी अगर अटेम्प्ट है, 40 अटेम्प्ट है, तो 39 इंटू द रिलेटिव कितना मिल रहा है, रिलेटिव चेंज प्लस द लास्ट थ्रो। इसमें रिलेटिव नहीं होगा, अगर वो 6 यूनिट्स ऊपर जा रहा है, 1 यूनिट नीचे आ रहा है, तो चेंज कितना है उसका, 5 है, तो 39 इंटू 5, लास्ट वाला तो 6 ही जंप मारेगा और नीचे नहीं आएगा। ये वाला ट्रिक था। और यहाँ पे एक ट्रिक मैंने बताया था, वो था कि 39 इंटू 4 है, 39 इंटू 4.5 है, और एक है 39 इंटू 5 कुछ है, तो ऑब्वियसली कहाँ पे लीस्ट होगा, ऐसा कुछ ट्रिक बताया था, वो चीज ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, स्ट्राइक वाला क्वेश्चन। 10 o'clock में टाइम इट विल स्ट्राइक, तो 5 में जितना था उसका ट्वाइस हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, कौन मार्क्स ज्यादा लाया, डेटा इनएडिक्वेट था क्योंकि कुछ रिलेशन मिसिंग था, नेहा वाला रिलेशन मिसिंग था। ये वाला क्वेश्चन क्या है, 3 डिजिट नंबर्स, कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, रिवर्स करना है, ऑल द 3 डिजिट कैसे लिंक निकाले थे हम, नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ऑल द 3 डिजिट्स आर डिफरेंट, नंबर एंड रिवर्सिंग इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, वही कोडिंग हम यूज करके निकाले थे, फिर पेयरिंग्स निकाले थे, ठीक है? ये खत्म हो गया था। अभी 3rd Jan का हमें चेक करना है, 3rd Jan का हमें सेकंड रिवीजन करना है, ठीक है? आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशंस, बिकॉज आपके साथ मैं रिवाइज भी करवा दे रहा हूँ आपका, ठीक है? रिवीजन नंबर 2 आपका 3rd Jan का। ये कौन सा क्वेश्चन है, कुछ पैसा था, ये इसको देगा 30 रुपया, वो उसको देगा 20 रुपया, ऐसा करके हमें कैलकुलेट करना था किसके पास ज्यादा पैसा है। रिमेम्बर? ये वाला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु रेड मैगजीन, ये मैंने बताया था कि आपको सेट थ्योरी में कराऊंगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है जो मल्टीप्लिकेशन वाला, डायरेक्टली आएगा, ऑप्शन मेथड में आप यूज करके निकाल सकते हैं। हु इज द स्लोएस्ट रनर, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या है, अच्छा बेसिक कैलकुलेशन, व्हाइट और रेड का रिलेशन कुछ गिवन है, व्हाइट और ग्रीन का कुछ रिलेशन गिवन है, फाइनल आंसर निकालना है। हॉबी क्लब, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन, इजी रिपीट क्वेश्चन था। नेक्टर वाला क्वेश्चन, फ्लावर वाला क्वेश्चन, जस्ट वैल्यू पुट करना है, ऑप्शन मेथड से हो गया। सो यू हैव डन रिवीजन ऑफ 3rd Jan ऑल्सो, ठीक है? सो विल कंटिन्यू अगेन ऑन इन लेक्चर नंबर 7, दैट विल बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 43 to 49। तो देखोगे 7 दिन में हम अराउंड 50 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है? सो आई होप ऑल्सो यू आर डूइंग ऑल दिस। So we'll meet again in the next lecture with some good tricks and all. So till then, keep calculating, keep doing the maths, keep doing the CSAT. Okay. So enjoy doing maths. So till then, have a great day. Bye bye. Take care. We'll see you again in the next lecture. Jai Hind.